یسوع مسیح کے زندہ جلالی پرفضل نام میں سب کو اسلام۔ کتنے آج خدا کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ آئیں اپنے دونوں ہاتھوں کو فلی طور پر آسمان کی طرف بلند کیجئے، لہرائیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اور کہیے پاک روح آج صبح میں تجھے ویلکم اور خوش آمدید کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے میں برکت پاؤں، میرا گھرانہ برکت پائے۔ جتنے ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں آئیں آپ بھی اقرار کیجئے، ڈکلیئر کیجئے آج صبح کے خدا کا کلام آپ کی زندگی میں بحالی کا، برکت کا کام کرے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، اس لمحہ کے لیے، اس وقت کے لیے جو خداوند نے میری، آپ کی، ہم سبوں کی زندگی میں بخشا تاکہ ہم خدا کی حضوری میں آ کر اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ کتنوں کو ورشپ کے وسیلہ سے برکت ملی ہے؟ آئیں زوردار تالیاں خوبصورت ورشپ کے لیے۔ یقیناً خدا کا تخت لگتا ہے جب ہم روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ آئے ہم کلام کی طرف بڑھیں گے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے گڈ شیپرڈ۔ کیا مضمون ہے جی؟ اچھا چرواہا۔ اور اچھا چرواہا کون ہے؟ کتنوں کو پتا ہے؟ یسوع۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ آئے خداوند کے زندہ کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب، پریز دی لارڈ۔ اور خداوند کے کلام میں سے ہم پہلی آیت ہی سے پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے، لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں، مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں 7ویں آیت میں لکھا ہے، پس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، I am a good shepherd۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیاں ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے خداوند کا شکر ہو۔ میرے چیزیں اس پیسج کے اندر یہ جو خداوند کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی پہلی 16 آیات جو خدا کے کلام میں سے آج میں نے پڑھی ہے، ان ورسز کو جب ہم بریفلی ہی پڑھ رہے ہیں تو بار بار
इन वर्सेस के अंदर, इन आयात के अंदर हमें अच्छे चरवाहे की क्वालिटीज मिलती हैं कि कैसे एक अच्छा चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और इसी हवाले के अंदर हमें मजदूर के बारे में पता चलता है। दो पर्सनालिटी नजर आती है कि मजदूर जो है वो सिर्फ दिहाड़ी पर है, जब मुश्किल का वक्त आता है तो वो भेड़ों को ही छोड़कर भाग जाता है। लेकिन गुड शेपर्ड जो कि यीशु मसीह है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, मेरे अजीजों, वो कहता है आई एम द गुड शेपर्ड। वो अपने मुंह से आज सुबह इस बात का इकरार कर रहा है दैट आई एम द गुड शेपर्ड। वो अच्छा चरवाहा है। और फिर हम देखते हैं सबसे बड़ी क्वालिटी इस अच्छे चरवाहे की क्या है, जो कोई शख्स किसी के लिए नहीं करता। आज इस दुनिया के अंदर जितने भी प्यार के दावे क्यों ना किए जाएं, कितनी भी बातें क्यों ना की जाए, लेकिन कोई किसी दूसरे के लिए अपनी जिंदगी नहीं देता। लेकिन ये जो अच्छा चरवाहा मेरा और आपका यीशु मसीह है, मेरे अजीजों, ये क्या है? अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और सिर्फ कहता नहीं है, बल्कि मेरे अजीजों, अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो कलाम हमें बताता है कि उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर अपनी जान दे दी। उसने मेरा और आपका कफारा दे दिया। उसने मेरे और आपके लिए खून बहाया ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और फिर हम देखते हैं कि वो कहता है चोर किस लिए आता है? ताकि चुराए, मार डाले, हलाक करे। लेकिन वो इसलिए आया कि आप जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। कमिंग वीक, थोड़े दिनों के बाद ही हम क्रिसमस सीजन के अंदर एंटर होने को हैं। मेरे अजीजों, हम बड़े एक्साइटेड होते हैं और कई लोग सिर्फ इसी एक्साइटमेंट को जो है क्रिसमस को एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और आज भी वो यीशु की भेड़ नहीं है। मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, इस साल क्रिसमस सीजन में एंटर होने से पहले मेरे अजीजों इस मकसद को जाने कि वो क्यों जर्नी में पैदा हुआ। वो बिगिनिंग से ही रिडेम्पशन के प्लान को लेकर निजात दहिंदा बनकर इस दुनिया में आया। तो आज चेक कीजिए, क्या आप भी ऐसे गल्ला में तो नहीं चले गए जिस गल्ला की निगहबानी के लिए मजदूर रखे गए हैं? मेरे अजीजों, आज चेक कीजिए, क्योंकि कलाम में आज सुबह मैंने पढ़ा कि वो कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। अगर आप यीशु की भेड़ हैं तो फिर आप यू मस्ट लिसन द वॉइस ऑफ गॉड। आपको यीशु की आवाज को सुनना है। और यीशु आपको मोहब्बत का दर्श देता है, वो अमन का दर्श देता है, वो सलामती का दर्श देता है। वो कहता है अपने दुश्मनों को भी माफ करो और उनके लिए बरकत चाहो, उनके लिए दुआ करो। लेकिन हमारे क्या रवैये हैं? जरा चेक कीजिए, क्या आप गलती से यीशु के गल्ला से निकलकर, अच्छे चरवाहा के गल्ला से निकलकर मजदूरों के गल्ला में तो नहीं चले गए? अगर आप ऐसे गल्ला में चले गए हैं तो जब दुश्मन आएगा तो बाइबल हमें बताती है कि मजदूर क्या है? अपनी भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। लेकिन ये अच्छा चरवाहा जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, जो यीशु अल मसीह है, जो खुद कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, वो क्या है? He leaves the 99, वो 99 भेड़ों को छोड़ता है और एक खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है। अगर आज आप वो खोई हुई भेड़ हैं, जितने लाइव देख रहे हैं, if today you are the lost sheep, तो मेरे अजीजों, आज वो आपके पीछे आ रहा है और आपको दावत दे रहा है कि आइए उसके गल्ला की भेड़ बन जाइए। मेरे अजीजों, अगर हम देखें एक जानवर जो शीप है, जो भेड़ है, उससे क्यों
चरवाही की जरूरत है। पहली बात जो आज हम देखेंगे, a sheep need shepherd for cleaning। क्या आपने कोई ऐसी भेड़ देखी है जो खुद ही अपने आप की सफाई कर लेती है? मैं बहुत से दुनिया के ममालिक में गई हूँ, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी की कंट्री में क्यों ना चलेगी, मैंने कोई भी ऐसी भेड़ नहीं देखी जो खुद ही अपने आप को साफ कर लेती है। जब गल्ला के अंदर भेड़ें होती हैं, कितनों ने भेड़ें देखी हैं, सफेद रंग की होती हैं, लेकिन अगर गंदी हुई हो ना तो बिल्कुल ब्राउन हो जाती हैं। और क्या है कि उनसे बू आती है। और कोई भी भेड़ ऐसी नहीं जो खुद से अपनी सफाई कर सके। भेड़ों को चरवाही की जरूरत है जो वो उनकी साफ सुथराई कर सके, उन्हें धो सके। इसी तरह जितने आप लोग इस वक्त सुन रहे हैं, यू नीड अ शेपर्ड। आपको भी शेपर्ड की जरूरत है ताकि वो आपके गुनाहों को धो डाले। हालेलुया। मेरे जीजा, जब इंसान की जिंदगी में भी गुनाह आते हैं ना, तो जाहिरी तौर पर तो चाहे वो दाग ना नजर आ रहे हो, बट इट स्टिंक। आपके बोलने से वो गुनाह जाहिर होते हैं। आज मेरे अजीजों, अगर आप देख रहे हैं, इस वक्त ग्राउंड में बैठे हैं, अगर आपको गुनाहों की माफी के लिए, अपने गुनाहों से धुलने के लिए आज इस चरवाहे की जरूरत है, तो आइए इस चरवाहा को, जो अच्छा चरवाहा है, जो कहता है तेरी गुनाह किरमजी भी क्यों ना हो, मैं उनको बर्फ की तरह धोकर पाक और साफ करूंगा। तो आइए आज अपनी गुनाहों की सफाई के लिए, अपने अंदर जो गंद भरा हुआ है, कलाम में लिखा है ऊपर से कैसे दिखते हैं और अंदर से क्या है। ये भी लिखा है कि कई लोग होंठों से तो ऐ खुदा कहते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। ऊपर से सफेदी फिरी हुई कब्रों की माने। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे अजीजों, दे प्रेडिक्ट डिफरेंटली व्हाट दे आर ओरिजिनली। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको दिखने में तो बड़े अच्छे लगेंगे, आपको आपके दोस्त लगेंगे, लेकिन क्या है, आपके साथ रहते हुए आपकी जड़ों को काट रहे होंगे, आपकी तरक्की से खुश नहीं होंगे, आपकी बरकतों से खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो यीशु की भेड़ें नहीं है, वो मजदूर की यानी चोर की यानी इब्लीस के हाथ में है। उनसे किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, वो किसी की बढ़ोतरी को नहीं देख सकते। आपको होंठों से तो लगेगा कि वो आपके जो है हक में है, लेकिन अंदर से वो आपके मुखालिफ होंगे। इस तरह के जो भेड़े हैं, आज उन्हें यीशु के पास आने की जरूरत है। हर तरह की बिदतों को, हर तरह की दोगली बातों को, हर तरह की नफरत को मेरे जीजों अपने अंदर से निकालिए। कलाम में लिखा है, जो कहता है ना अच्छा चरवाहा मैं हूं, कलाम हमें बताता है खुदा मोहब्बत है। अगर खुदा मोहब्बत है तो हम जो उसके फॉलोअर हैं, हमारी जिंदगी में भी खुदा की मोहब्बत होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जिस तरह एक शीप को, एक भेड़ को चरवाहे की जरूरत है सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए, आपको भी अपने गुनाहों से धुलने के लिए इस यीशु चरवाहे की जरूरत है। आज मेरे अजीजों, इसे अपनी जिंदगी में ले लीजिए। और क्या है, जब यीशु आपकी जिंदगी का चौपान होगा तो फिर वो आपको बर्फ की तरह धोकर पाक और साफ करेगा। हालेलुया। फिर आपके अंदर से मोहब्बत निकलेगी, फिर आप दूसरों को सैराब करने वाले होंगे, दूसरों के लिए बरकत चाहने वाले होंगे। हालेलुया। दूसरी बात मेरे अजीजों, अ शीप नीड शेपर्ड फॉर डायरेक्शन। एक भेड़ को चरवाहा की जरूरत है कि वो उसकी राह की राखी कर सके, उसको रास्ता दिखा सके। किसी ने कोई ऐसी भेड़ देखी है कि इधर से छोड़ दें उसको, कहें और उसको कहें कि फलां जगह पहुंच जा, और वो भेड़ खुद ही उस जगह पहुंच जाए? अगर किसी ने देखी है तो आप मुझे बता सकते हैं। या किसी भी भेड़ में कोई GPS का सिस्टम नहीं होता कि वो खुद से किसी दूसरी जगह
पहुंच जाए। एक भेड़ को चरवाहा की ज़रूरत है ताकि वो उसकी सही सिमत में जो है उसकी लाइफ को डायरेक्ट कर सके। इसी तरह मेरे अजीजों, आप जितने भी यीशु की भेड़ें हैं, आपको भी अपने रास्ता की डायरेक्शन के लिए इस अच्छे चरवाहा की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है ऐसी भी राहें हैं, अगर आप मिसाल को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, जो दिखने में तो सीधी मालूम होती हैं लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। हो सकता है कि जिस सिमत आप जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन आप जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये बड़ा ही खूबसूरत है। इंग्लिश का एक मुहावरा है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज जो है वो सोना नहीं होती। आज हम देखते हैं बहुत से लोगों के अंदर इब्लीस ने लस्ट को पैदा किया है, लालच को पैदा किया है। दे नेवर गेट सेटिस्फाई, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, बल्कि एक जगह से उठते हैं दूसरी जगह से उठते हैं तीसरी जगह। उनकी जिंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं है, और ये लस्ट, ये लालच इसी तरह बढ़ता चला जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, आज अगर आप ऐसी राहों पर चले गए हैं तो आज आपको जरूरत है कि अच्छा चरवाहा जो मेरा और आपका यीशु मसीह है, उसको अपनी जिंदगी में दावत दे। जब यीशु आपका चौपान होगा तो वो टेढ़ी राहों को सीधा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हम नेक्स्ट बात देखेंगे, व्हाई अ शीप नीड शेपर्ड। क्यों एक भेड़ को चरवाहा की जरूरत है? शीप नीड शेपर्ड फॉर प्रोटेक्शन। मेरे अजीजों, हिफाजत के लिए एक भेड़ को चरवाहा की जरूरत है। कभी भी आपने किसी भेड़ को देखा कि कोई भेड़िया आ जाए या कोई जंगली जानवर आ जाए तो वो खुद ही उसका मुकाबला कर ले? किसी ने इतनी दिलेर भेड़ देखी है? भेड़ें जो है वो बड़ी सीधी सादी होती हैं, इसीलिए यीशु ने जो है उसकी एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर हमें दी है। इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल। यीशु की टीचिंग इट इज़ वेरी इजी। हम देखते हैं कि यीशु, नए अहदनामा को आप पढ़ें तो यीशु हमेशा तमसीलों में मसाले दे देकर बात करता था, ताकि जितने लोग हैं उन्होंने उत्तो ना नांग जाए, बल्कि उनको बात की समझ लग सके। और यहाँ पर भी मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि इस हवाले के अंदर लिखा है, चोर आता है चुराने को, मार डालने को, हलाक करने को। इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि इब्लीस मारना चाहता है, बीमारियों के जरिया से तबाही पैदा करता है, तरह तरह की डिस्ट्रक्शन है। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरा और आपका मसीहा इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और इसी टेक्स्ट के अंदर, हवाले के अंदर हम देखते हैं कि लिखा है, मजदूर क्या होता है? जब दुश्मन आता है तो भाग जाता है, लेकिन अच्छा चरवाहा क्या है? वो अपनी भेड़ को उठाता है, उससे पीछे करता है और खुद उस जानवर से, उस खतरनाक जानवर से मुकाबला करता है। आज मैं आपको कहना चाहती हूं, अगर आप अपनी जिंदगी की बैटल्स, अपनी जिंदगी की जंग खुद लड़ रहे हैं और जंग लड़ कर हार चुके हैं, ना उम्मीद हो गए हैं, तो आपके लिए खुशी की बात यह है कि जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा ओ जंग कदी। लेकिन कई लोग खुद ही अपने आप को समझते हैं, माइट बी आई एम अ सुपरमैन। कई लोग खुद ही अपने आप को समझते हैं, मैं बहुत कुछ हूं, मैं आप पे यह काम कर लूंगा, और क्या है, उधर ही गिर पड़ते हैं। मेरे अजीजों, अगर अपनी मुश्किलात को, अगर अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जंगों को, अपनी लड़ाइयों को मेरे अजीजों यहोवा पाक खुदा के हाथों में दे दीजिए। कईयों को मैंने ये भी कहते सुना है, मैं जितनी देर तक बदला ना ले ला, मैनू नहीं सुकून आंदा। जब आप अपनी चीजों को इस तरह से हैंडल करेंगे, जब आप खुद से अपनी जंगों को लड़ना शुरू करेंगे, बदला लेना शुरू करेंगे, तो आप पस्त हो जाएंगे, आप नाकाम हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे। लेकिन अगर इसके बरअक्स आप अपनी बातों को, अपने मुकदमों को, अपनी लड़ाइयों को, अगर किसी ने बुरा भी किया है, उन सारे मुकदमों को यहोवा पाक की हजूरी में लाएंगे, तो आप फतह से बढ़कर
कर गलबा पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, एक भेड़ को चरवाहे की जरूरत है कि वो उसकी हिफाजत कर सके। आज आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी गुनाहों की सफाई करे, तो आइए इस अच्छे चरवाहे को अपनी जिंदगी में ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी राह की राखी करे, आपके रास्तों में हिफाजत करे, जिस भी राह में आप जाएं वो उसको आपके लिए प्रॉस्पर कर दे, खुशहाल कर दे। आप कैद में भी जाएंगे, हाथ रखेंगे तो बरकत आएगी। कब आएगी? जब यीशु आपका चरवाहा होगा। हालेलुया। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए, पनाह के लिए, ज़बूर कहता है मैं पनाह के लिए तेरे पास भाग आया हूं। मैं हमेशा कहती हूं, the safest place in the world is the hand of God। कितनों का ईमान है कि दुनिया की सबसे महफूज जगह खुदा का हाथ है? तो आइए खुदा के हाथ में आ जाइए। कलाम में लिखा है खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, और खुदा का कान भारी नहीं कि सुन ना सके। इसलिए मत घबराया करें मुश्किलात को देखकर, मत घबराया करें बीमारी देकर, मत घबराया करें हालातों को देखकर। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, मत घबराया करें। अपनी सारी बातों को यहोवा पाक खुदा की हजूरी में आए, लेकर आए और उसको अपना चौपान बना ले। आइए हम 23 ज़बूर को पढ़ेंगे, और वहां पर बच्चों को जुबानी भी 23 ज़बूर आता है। बड़ा खूबसूरत और बाबरकत ज़बूर है। आइए हम पढ़ेंगे। लिखा है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी। जिनका चौपान खुदावंद होता है उनको किसी चीज की कमी नहीं होती। हालेलुया। कितनों का ईमान है इस बात पर? आए हाथों को बुलंद करके कहिए खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। फिर मेरे अजीजों, हरी हरी खुश्क साली में भी जाएंगे, बियाबान में भी जाएंगे, तो खुदावंद बियाबान में भी आपके लिए दरिया जारी कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और हरी हरी यानी ग्रीनरी आपके चौगिर्द रहेगी। आप हमेशा हशाश बशाश प्रॉस्पर, हरियाली जो है वो प्रॉस्पेरिटी को शो करती है। इब्लीस ने जो आपकी चीजें चुराई हैं, आपकी खुशी को चुराया है, आपके रुपए पैसे को चुराया है, इट्स टाइम टू टेक इट बैक। वो वक्त है कि आप उन तमाम बरकतों को इब्लीस से वापस हासिल करें। हालेलुया। और फिर तीसरी आयत में उससे भी खूबसूरत बात, वो मेरी जान को बहाल करता है। ही रिस्टोर योर सोल। अगर आज आपको रेस्टोरेशन चाहिए, बहाली चाहिए मेरे अजीजों, खुदावंद क्या है? गिरे हुओं को उठा खड़ा करता है। अगर इब्लीस ने आपको गिराने की कोशिश की है, दुनिया ने आपको गिराने की कोशिश की है, जिसके साथ यहोवा पाक खुदा है, जिसका चौपान खुदावंद है, वो कभी भी गिर नहीं सकता। क्योंकि कलाम में लिखा है जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। फिर हम देखते हैं, लिखता है वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। जिनका चौपान खुदावंद होता है, जो यीशु की भेड़ें होती हैं, फिर क्या है? राहें भी कौन सी मिलती हैं? सदाकत की राहें। फिर आगे हम देखते हैं, ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरे अजीजों, चाहे मौत के साया की वादी यानी टेरेबल सिचुएशन, चाहे और सारी दुनिया आपके खिलाफ है, आप तन्हा है, आपको चारों तरफ मौत नजर आ रही है, लेकिन अगर खुदावंद आपका चौपान है तो आप मौत के साया की वादी में से भी गुजरेंगे तो नहीं डरेंगे, क्योंकि जानते हैं कि खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया। और जिसके साथ यहोवा पाक खुदा होता है, फिर वो क्या है?
कभी भी डरता नहीं। वो कहता खौफ ना खा, हरासा ना हो, मैं तेरा खुदा हूँ, मैंने तेरा दाहिना हाथ पकड़ा है और यकीनन तेरी मदद करूँगा। आपको अश्योरिटी है, इस बात का यकीन है कि जब खुदावंद आपका चौपान है फिर आपका हाथ किसी और के हाथ में नहीं होगा। और वो लोगों की तरह बीच रास्ते में हाथ नहीं छोड़ता, बल्कि वो जिसका हाथ एक बार थाम लेता है फिर वो हाथ हमेशा यीशु के हाथ में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम देखते हैं मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। यानी आपके दुश्मन, आपके एनिमीज जो आपको लेट डाउन करना चाहते हैं, गॉड इज गोना प्रॉस्पर यू इन फ्रंट ऑफ देयर आईज। मेरे जीजो, वो लोग जो आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बुरी बातें करते हैं, वो रूबरू देखेंगे कि कैसे खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम देखते हैं लिखा है तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। ही anoints you। आज वो आपको मस्सा करना चाहता है। अगर किसी भी तरह से आपकी जिंदगी में इब्लीस ने बुरा बीज बो दिया है, गुनाह आपकी जिंदगी में आ गया है, अगर आज आप चाहते हैं कि गुनाह धुल जाए और वो आपको ताजा ऑयल से, फ्रेश अनॉइंटेड ऑयल से मस्सा करे, तो आइए आज उससे कहिए कि तू मेरे सर को तेल से मस्सा कर और मेरा प्याला लबरेज, यानी योर कप will overflow। आपकी बरकतें लबरेज होंगी, एक पैमाने में नहीं रहेंगी, बल्कि इतनी ओवरफ्लो होंगी कि आपके वसीला से दूसरे सैराब होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम देखते हैं लिखा है यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। जो खुदा की भेड़ें होती हैं, जिनका चौपान जिंदा खुदा होता है, फिर वो क्या है, हमेशा खुदा के घर में सकूनत, पीस। किसी भी रुपए पैसे से ये पीस नहीं मिलता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं रात को नींद की गोली खाकर सोया हूं, उनकी जिंदगी में पीस नहीं है। अगर मेरे अजीजों बाइबल को आप पढ़ें तो यीशु मसीह सुलह और सलामती का शहजादा है। आइए इस प्रिंस ऑफ पीस को अपनी जिंदगी में ले लीजिए, इसकी भेड़ बन जाइए। और अगर हम दोबारा से देखें यूहन्ना की इंजील 10वें बाब के अंदर, तो वहां पर लिखा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। कितनी यीशु की भेड़ें यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्या आप उसकी आवाज को सुनते हैं? वो आपकी रास्तों की राखी करता है, वो आपको बुरी चीजों से अवेयर करता है। मेरे अजीजों, उसने आपकी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है और आप उसके सामने हैं। वो आपसे बेहद प्यार करता है। मेरे अजीजों, मैं चाहती हूँ कि कमिंग वीक के अंदर क्रिसमस सीजन में एंटर होने से पहले आइए, अगर आपको क्लीनिंग की जरूरत है, आपको सफाई की जरूरत है, तो यीशु के पास आइए। उसे कहिए मेरे अंदर से नफरत को निकाल, मेरे अंदर से हर एक उस बुरी बात को निकाल। कलाम में लिखा है हम बातों बातों में खता करते हैं और खुदा के पाकरू को रंजीदा करते हैं। तो मेरे अजीजों आइए, इट्स टाइम टू रिपेंट। अपने तौबा कीजिए, खुदावंद को कहिए खुदावंद अगर मैंने बातों बातों में खता की है, ऐसे अल्फाज भी बोले हैं, तो तू मुझे माफ कर। कहिए कि आने वाले साल के लिए मैं चाहता हूं कि तू मेरी डायरेक्शन कर, तू मेरे रास्तों की जो है मुझे गाइड कर कि किस राह पर मुझे जाना है। आइए प्रोटेक्शन के लिए, अगर गुज़िश्ता साल आप खुद ही अपनी जंगों को लड़ते रहे हैं, इब्लीस से मार खाते रहे हैं, तो आइए अपने आप को उसके खून में छुपा दीजिए। आइए उससे कहिए मैं तेरी भेड़ हूं, तेरा खून मुझ पर आए, तेरी खून की डिवाइन प्रोटेक्शन को मांगता हूं, ताकि आप इब्लीस के हाथ से बचे रहें और खुदा के हाथ में रहें और बरकत पर बरकत पाएं। और आखिरी हवाला खुदा के कलाम में से हम देखेंगे मेरे अजीजों, मुकाशफा उसका 7वां बाब। ये अच्छा चरवाहा जिसकी आप भेड़े हैं, वो क्या चाहता है आपकी जिंदगी के अंदर। मुकाशफा उसका 7वां बाब, प्रेज द लॉर्ड, और उसकी 17वीं आयत
यहाँ पर लिखा है क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये जो बर्रा है, ये जो अच्छे चरवाहे की हम बात कर रहे हैं, जब वो अपने थ्रोन पर है, जो वो अपने तख्त पर है, तो यहाँ पर भी क्या है, वो अपनी भेड़ों की गलाबानी कर रहा है। वो तख्त पर भी बैठे हुए मेरे अजीजों आपकी फिक्र करता है, आपकी हर एक बात को देखता है और फिर क्या है, वो आपको आबे हयात के चश्मों के पास ले जाना चाहता है। कितने हैं जो चाहते हैं आबे हयात, लिविंग वाटर, जिंदगी का पानी मेरे अजीजों, जिसको पी लेंगे तो कभी प्यासे नहीं रहेंगे, बल्कि आपके अंदर से जिंदगी जारी होगी। हालेलुया। और फिर आगे खूबसूरत बात, और खुदावंद उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। जिसकी आंखों के आंसू खुदा पहुंच देता है, फिर उसकी जिंदगी में सिर्फ शादमानी ही शादमानी होती है। हालेलुया। कितने चाहते हैं खुदावंद आपको आबे हयात के चश्मों के पास लेके जाए और आपके सब आंसू पहुंच दे। हालेलुया। तो फिर मेरे अजीजों आइए इस अच्छे चरवाहा को जो यीशु अल मसीह है अपनी जिंदगी में लीजिए। इस क्रिसमस सीजन को महज रवायती तौर पर, त्यौहार के तौर पर सेलिब्रेट मत कीजिए, बल्कि अभी से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि वो नजात का मंसूबा जो यीशु लेकर आया है, कैसे मैंने इस मंसूबे को दूसरों तक पहुंचाना है, कैसे मैंने दूसरों को बताना है व्हाट इज क्रिसमस, क्रिसमस क्या है, हम इसे क्यों मना, और बोल के नहीं बल्कि करके दिखाना है, ताकि खुदा की मोहब्बत आपके वसीला से दूसरों की जिंदगी में घर करे। हालेलुया। आए सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं। जितने लाइव इस वक्त देख रहे हैं, जितने इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं, आइए, अगर आज आप अच्छे चरवाहे की भेड़ें बनना चाहते हैं तो आइए उससे पुकारना शुरू कीजिए। उसे कहिए आज मुझे तेरी जरूरत है, यीशु नासरी मेरी जिंदगी में आ, मेरे गुनाहों को धो डाल, मेरे रास्ता की रहनुमाई कर, मुझे प्रोटेक्शन के लिए तेरी जरूरत है। आइए अपनी बातों को यहोवा पाक के सामने रखिए। आइए दोनों हाथों को फुली तौर पर आसमान की तरफ बुलंद कीजिए, हम दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस पा खुदा, जिंदा जाली आसमानी बाप, मैं दिलो दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती कि तू भला खुदा है, तेरी शफकत अबदी और तेरा प्यार निराला है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती कि तू इसलिए आया कि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हम कसरत की जिंदगी के लिए जो तेरे वसीला से मिलती है, हम तेरा शुक्र अदा करते। आज जितने प्यारों ने तेरे जिंदगी बख्श कलाम के सुना, मैं इनके लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। खुदावंद अगर ये तेरे गल्ला से बाहर चली गई हैं, आज मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, इन भेड़ों को मैं तेरे पास लाती, तेरे गल्ला में लाती। देख पा खुदा, तू इनका चौपान बन, तू इनका रखवाला बन, इनको राहत के चश्मों के पास लेकर जा। खुदावंद आबे हयात के चश्मों को आज इनके लिए जारी करती है पा खुदा, और इनके आंखों के आंसुओं को यीशु के नाम से पहुंच दे। जितने बीमार हैं देख पा खुदा, आज ये बीमारियों से शिफा पाए, जो मुश्किलात में है, परेशानियों में है, तकलीफों में है, आज तू खुदावंद इनकी तमाम बीमारियों को अपने ऊपर ले ले पा खुदा। खुदावंद आज जितने भी इस ग्राउंड में मौजूद हैं, जितने लाइव देख रहे हैं, देख पा खुदा, इनको मैं बर्रे के खून में छुपाती देख पा खुदा। तेरा पाक रूह इन्हें महफूज रखे, तेरा चेहरा इनकी तरफ मतवज्जो हो,
ताकि तेरी डिवाइन प्रोटेक्शन इनके साथ हो पा खुदा, इनके स्टेप्स की, इनके खुदावन तू कदमों की, इनकी रास्तों की रखवाली कर देख पा खुदा, जिस राह में भी जाएं खूब कामयाब हो देख पा खुदा, और बरकत पर बरकत पाएं मसीह के नाम से, आमीन। आए बुलंद आवाज से कहिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितनों को कलाम के वसीला से बरकत मिली है, हालेलुया। आए अपने दोनों हाथों को लहराइए और जोरदार तालियां जिंदगी बख्श कलाम के लिए बजा दीजिए।